Hello once again. This time we have question number 7, and the question number 7 now says about a right angle triangle. Like as in the figure I have drawn over here on the whiteboard, it's a figure of a right angle triangle as you can see clearly. And over here there are two triangles in one triangle. The triangle ABC consists of two triangles, that is triangle ABD and triangle BDC. Simple, there are two triangles. One triangle is unshaded and the other triangle is shaded. So what they are saying is they are saying that they want the area, the area of the shaded portion. जो उसका area है shaded portion का वो आपको निकालना है. That you have to find out from according to question whatever the book says. So now I shall read the question from the book. Okay, I am reading the question. Just pay attention on the screen. The given figure shows a right angle triangle ABC and an equilateral triangle BCD. Find the area of the shaded portion. Now simple, it's as I have already explained to you the question. Over here, one thing they are saying that the triangle ABC is a right angle triangle, and secondly they are saying the triangle BCD or BDC, whatever, it's the same. Then this triangle is equilateral triangle. That means all the three sides are equal. Simple. ये जो ट्राइंगल है BCD, ये आपका जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें जो तीनों साइड्स जो है बराबर होती हैं. तो जो है ये है, बस ये कंडीशन दी हुई. एंड नाउ दे आर सेइंग फाइंड द एरिया ऑफ द शेड पोर्शन. हमें जो इस ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है. अब इट्स द क्वेश्चन इज वेरी इजी. बस हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट डायग्राम. देन आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. उसके बाद जो पोलर में से इसको माइनस कर देंगे और सिंपली जो है ये हमारा जो है इसका जो है हमारा एरिया निकल जाएगा. चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ. लेट मी शो यू द क्वेश्चन. One thing you are forgetting, that there two measurements are given. One is AC and the other one is BC. So AC, the measurement of AC is 16 centimeter completely, and over here BC is 8 centimeter. Now, as you know, the third measurement is not given. This means that it's perpendicular. This is base and this is your hypotenuse. So simply now, according to rules of the Pythagoras theorem, we will find out the measurement of perpendicular. Simple. First of all, what we have to do is over here is first of all we will write over here whatever is given to us. AC is equal to 16 centimeter, BC is equal to 8 centimeter, and now AB is not going to write question mark, and area of triangle some ABD, because we have to find out triangle ABD, and that's why I am writing question mark. Simple. Now we shall start with the question answer. And now now first of all what we have to do, we have to find the measurement of AB. So according to rules of Pythagoras theorem, simple, we will write Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, simple, a question, comma. Now I simply draw the diagram over here. एक छोटा सा मैं diagram बनाया था ताकि आपको दिक्कत ना हो, because I have drawn the diagram over here. A, B, C and D. Simple. This is just a rough diagram. You don't have to draw it in your copy or register. Simply now we have, as you have to find out the AB, the value of AB. So simple. According to rules of Pythagoras theorem, hypotenuse, this is AC. And this base is your BC square plus your this perpendicular. So simple, we write AB square. Now over here AC is given. AC means 16 square, BC is your 8 square plus AB square, which you have to find it out. So the value of 16 square, that is, if you multiply 16 into 16, that is equal to 256.
सिंपल यहाँ पर जो है 8 into 8 it will be 64 plus AB square. Simple. Now we will take it out over here. As you know from the rules of the maths, so now if we minus 256 by 64, we minus each other, the answer will be 192 is equal to AB square. Now whether you write this way or you write this way, it's the same, like this. And now the lastly what we will do, simple like this, 192 like this. Now what we have to do over here, we have to find it out, the square root of 192. So simple, हमें जो है इस टाइप की क्वेश्चन करने के लिए फटाफट जो है we have to first of all we have to draw a rough diagram, simple like this, R by W. And now 192, simple. 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, so 2 24s are 2 12s are 2 6s are 12, 2 24s are 2 12s are 2 6s are 12, 2 3s are 6. Make sure students आप जब इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं प्लीज बी अलर्ट कि जो है इस टाइप के जो है ये आप कैलकुलेशन कर रहे हैं रफ में, इसमें जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे लेंथी क्वेश्चन चाहे शॉर्टकट हो, व्हाटएवर जो भी छोटा जैसा लंबा चौड़ा कुछ भी हो, मेक श्योर कि देयर शुड बी एनी मिस्टेक इन द रफ में या फेयर कहीं भी आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर जरा सी भी आपने मिस्टेक कर दी यू विल बी इन प्रॉब्लम, आपको जो है दिक्कत हो जाएगी और फिर आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है. So this is chart, these are the factors actually, ये सब factors हैं, ये ऐसी ये भी सब factors हैं 192 के. अब जो है यहाँ पे हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के सिंपल व्हाट वी डू लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6, हम 6 टाइम जो है यहाँ पे लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6, या बार में काउंट कर लीजिए ताकि जो आपको दिक्कत ना हो. सिंपल जैसे कि जो तरीका है सिंपल यूज करते आ रहे हैं हम वही तरीके से चलेंगे. अब जो है बस इसका जो है 2, इसका भी 2, इसका भी 2, सिंपल, और ये 3 जो है अकेला रह जाएगा जैसे कि ये रूल्स होते हैं. सो 2 into 2 into 2 and square root 3 like this, सिंपल. इसका मतलब सेंस यही है कि हम बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है. सो 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 root 3, आपका जो है 8 root 3 जो है आपका आंसर आ गया. मैं लिख देता हूँ नीचे लास्टली 8 root 3. इसे आप जो है बिकॉज देयर इज नो स्पेस ओवर हियर, आप इसको ठीक नीचे यहाँ अपनी कॉपी में लिखेंगे साफ साफ 8 root 3 सेंटीमीटर. आपका ये जो है आपका मेजरमेंट आया आपका फॉर दिस 8 root 3, ये आपका जो है एक्चुअल आपका मेजरमेंट है परपेंडिकुलर. Now we can easily find out the area of ABC. Simple, we will write area of triangle ABC, simple, is equal to half into B into H. So over here base is your BC, BC is equal to 8 and H is equal to, H आपका निकला था that was 8 root 3 like this. It was over here, simple, 2 1 2 2 4 8. Now 4 into 8 root 3. मैं जो है थोड़ा सा और डिटेल में जो है एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो. थोड़ा सा आप जो है अगर आपको कहीं फील होता हो कि ऐसे ये कोई स्टेप एक्स्ट्रा है आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं जो है हर स्टूडेंट को जो है पूरा डिटेल में कराऊँ ताकि जो है एवरेज लर्नर्स स्पेशली जो कुछ आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो है जिनको दिक्कत होती है स्टेप्स मैं इसलिए हर स्टेप खोल खोल के समझा के मैं कराने की कोशिश करता हूँ. बाकी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल फील हो. 8 4 32. हम जब जो है इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई ना होकर ये इससे जरूर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बाहर जो भी नंबर होगा तो उससे डेफिनेटली मल्टीप्लाई होता है. तो 4 8 32 root 3
इस तरीके से हम जो है हमारा ये एरिया निकल चुका है। इफ इन केस मान लीजिए 4 इंटू रूट 3 होता तो सिंपल हम लिखते हैं 4 रूट 3 सिंपल। इस तरीके से जो है हम जो है सर्ट्स को सॉल्व करते हैं। अब जो है ये हमारा निकल चुका है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पूरा एरिया निकल चुका है। अब हम जो है ट्राइंगल बीसीडी का निकालेंगे एरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। अब जो बीसीडी है दैट इज ये आपका जो है इट्स इक्वल टू ट्राइंगल। तो सिंपल हम जो है वही फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होना चाहिए, जैसे कि लाइक दिस, ए स्क्वायर लिख लीजिए, साइड स्क्वायर लिख लीजिए, इट्स मोर और लेस द सेम, रूट 3/4 और आपकी साइड। अब आपकी जो है इसमें एक साइड पता होनी चाहिए, तो जो है ऑटोमेटिकली जो है बाकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ये अगर 8 है सिंपल, ये भी 8 होगी और ये भी 8 होगी सिंपल। ये तो 16 आपकी पूरी ओवरऑल निकल ही चुकी है आपकी। अब जो है अब आपके पास जो है आपको क्या करना है कि रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। आपका जो आपकी एक साइड में बन चुकी है, हमारा काम हो जाएगा। अब इस तरीके से हम लिखेंगे। अब सिंपल जो है रूट 3/4, सो 8 8 64 लाइक दिस। अब मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, 4 1 4, 4 1 4 एंड 4 6 24। सो अब जो है मैं यही हैंड पेन लिख देता हूँ, 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर सेकेंड आंसर। पहला आपका जो है कंप्लीट ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है दैट इज 32 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी का जो निकला हमारा आंसर दैट इज 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि जो है आपका ट्राइंगल एबीडी का जो आपका एरिया है, हाउ टू फाइंड इट आउट। Now this is the final step over here. As we know that we have already find out the complete area of this triangle ABC, and the second one is we have already found out the area of triangle BCD. Simple. Now हमें क्या करना है? Simple. What we have to do is we have to minus this complete area with this small area. Simple. तो हमारा जो है ये निकल आएगा पूरे में से जो है, बस आप इसको माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये वाला एरिया निकल आएगा। हमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नाउ आई एम राइटिंग देयरफॉर सिंपल। अब आपको जो है ये आपको पता ही है कि जो है मैं एक स्टेप इसमें भी और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, बाकी आप चाहें लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है। ट्राइंगल एबीसी जो है किसके बराबर है? ट्राइंगल एबीडी प्लस ट्राइंगल बीसीडी। बीडीसी बोल लीजिए, बीसीडी बोल लीजिए, एक ही बात होती है। ये अंडरस्टूड है, इसके बराबर है। अब जो हमारे सामने है, जो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एबीडी। एबीडी निकालना है तो सिंपल जो है एबीसी, इसको मैं इधर ले आऊंगा, इस वाले को माइनस ट्राइंगल बीसीडी लाइक दिस is equal to triangle ABD। अब जो है ABD हमें निकालना ही है। अब मैं इसे ऐसे लिखूं या फिर मैं इसे ऐसे लिखूं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ताकि जो है आप इसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं इनको ठीक से समझ में नहीं आता है, तो उनकी हेल्प के लिए मैं जो है थोड़ा सा और खोल के डिटेल में मैं इस तरीके से क्वेश्चन को अक्सर कराता हूँ मैं, ताकि उनको दिक्कत ना हो। लाइक दिस सिंपल। अब जो है हमें क्या है? हमें निकालना है एबीडी। एबीडी हमें से पूछा गया। अब एबीसी है, एबीसी इज 32 रूट 3 पूरे का जो एरिया इतना निकला था, और जो बीसीडी का निकला था दैट वाज 16 रूट 3। अब वैसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 32 माइनस 16 सॉल्व हो तो ऑटोमेटिकली आप जो है कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन जब इसमें स्क्वायर रूट 3 आ गया है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 है, तब इनको आपस में कैसे माइनस करेंगे? तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सर्ट्स। ये सर्ट्स का क्वेश्चन है। सर्ट्स के चैप्टर में ठीक से पढ़ा होता है, स्पेशली 6, 7, 8 क्लास में, तो फिर आप ऑटोमेटिकली जो है इसको आप ठीक से कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताया था, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है कि जब सेम टू सेम रूट स्क्वायर रूट दे रखा है, अंदर जो है नंबर सेम है, तो फिर हम इनको जो है थोड़ी देर के लिए हम इनको भूल जाते हैं और सिंपली जो है 32 माइनस 16 कर देते हैं।
So 32 minus 16. So 32 minus 16 is your 16 only. तो इसे इस तरीके से हम लिख देंगे, इस तरीके से हम लिख देंगे, स्क्वायर रूट 3 का एज छोड़ देंगे एंड वी विल राइट सिंपली 32 minus 16 इज 16 होता है। तो जो है इस तरीके से जो है हमारा आंसर ये निकल रहा है। अब लास्ट में इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। Therefore the area of shaded portion is 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। इस तरीके से जो है हमारा ये आंसर है। अब जो है वीडियो में एंड करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ कि अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो कि आखिरकार ये कैसे हुआ, ये 32√3 है माइनस 16√3, ये कैसे इसका आंसर 16√3 आया है, तो मैं आपको जो है शॉर्ट टर्म करके यहीं पे थोड़ा सा आपको बताया, तो मैं आपको जो है आपको यहीं पे जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये कि आखिरकार ये आपका आंसर कैसे आया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल 32√3 माइनस 16√3 इस तरीके से है ना। अब अगर मैं अलजेब्रा के रूल्स के अनुसार मैं जो है इन दोनों में देखिए, ध्यान से देखिए कि इसमें कॉमन है, कुछ दिख रहा है, सिंपली √3 इज कॉमन, दोनों में √3 है, तो थोड़ी देर के लिए मैं √3 को बाहर निकाल देता हूँ और मैं थोड़ी देर के लिए जो अंदर जो है जो चीज़ें हैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रा। आप ध्यान से देखिए कि इसकी वैल्यू सेम है कि नहीं है। मैं देखिए इसमें इसका जो है मैं इसका फॉर्म चेंज कर दिया, तो सब कुछ सेम है। √3 to √32 करूँगा तो यही आंसर आएगा, और √3 to 16 करूँगा -16, तो मैंने -16√3 ही आएगा आंसर। बस मैंने क्या करा, इसमें से √3 मैंने एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल दिया, मैंने दोनों में जो कॉमन था उसको बाहर निकाल दिया। अब थोड़ी देर के लिए मैं लिखता हूँ √3 और ब्रैकेट के अंदर 32 - 16 कर देता हूँ, दैट इज 16। मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ। अब जो √3 और जो ब्रैकेट में 16 है, दिस थिंग क्लियरली शोज, मैं यही लिखता हूँ आगे, इसका सेंस यही बनता है √3 × 16, और इसका मतलब जो है दैट इज इक्वल टू 16√3। इस तरीके से जो है आपका, इस तरीके से जो है आप मेरा जो आंसर आएगी, इसका सेंस ये बनता है। इस तरीके से जो है मैंने ये चीज़ को निकाली है। तो जो है बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस आप करेंगे तो जो है ऑटोमेटिकली सब चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। जस्ट हैव टू गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन। So here I end my video. See you in the next video. Have a nice day.